ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। जितना समा चावला साहब ने समय की वंड करदियां मैनू हुक्म किया है दास आप जी की सेवा विच हाज़री भरेगा। हुणे आपां ने जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का 552वां प्रकाश गुरपुरब मनाया। 8 तरीक नूं धर्म रक्षक सतगुरु तिलक जंजू दे राखे त्याग वैराग दी मूरत धर्म दी तुझा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मनाउणा है। गुरपुरब मनाउण वाले गुरसिखां तो भाई गुरदास कहते ने मैं कुर्बान जाता हाँ सदके जाता हाँ। उस वक्त दे की हालात होणगे शायद उहदा बहुता आपां नूं ना पता होवे, पर अज समा बीतण तो बाद असीं बड़ी भली प्रकार जानते हैं कि ये वचन जिन्ने पुराने ने उन्ने ही कीमती ने, क्योंकि अजकल अपने जन्मदिन तो लैके बच्चों के जन्मदिन अपने विआह दियां सालगिरह बजुर्गों दियां बरसियां ये जिहड़ा वैसटर्न प्रभाव सी
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਰ ਡੇ ਕਵੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਕਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਕਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭੈੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੱਸਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤਾਨ, ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
क्योंकि मैनू एक गल समझ आई कि गल्लां साडी हिफाजत वास्ते ने। जिवें असीं एयरपोर्ट ते जाने वो कहते जी शूज़ भी उतारो, तो कई मेरे वर्गे बड़ा गुस्सा करते हैं, पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो साडी हिफाजत वास्ते ने। क्योंकि डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे। अगर जहाज विच कोई अणसुखावी घटना वापरेगी तो वो किसी एक लिए थोड़ा वापरनी है, सारिਆਂ ਲਈ वापरनी है। जिहड़ा गुरु ने सानू सिद्धांत दिता है ना, सरबत का भला मंगो, वो बड़े वड्डे अर्थ ने, बहुत वड्डे अर्थ ने। और इनू तुसी अपने घर विच भी वेख सकते हो। जे हुण घर विच है, अगर घर दे सारे जी तंदुरुस्त ना होए तो रात नूं नींद पूरी नहीं होनी। छोटे जे बच्चे नूं भी तकलीफ होई ना तो रात सारिਆਂ दी डिस्टर्ब होएगी। ये सरबत दे भले च ही मेरा भला है, ये गल किस सानू समझ नहीं आ रही। असी इनू भी एक अपनी वडियाई बना लिया, इनू ही अपनी असी एक बड़ी वड्डी प्राप्ति करके असी अपनी पेटा आपे ही थप थपाउंदे रहने हैं। असीं तो असीं सरबत का भला मंगते हैं। सरबत का भला मंगना गुरु नानक दे घर का प्रिंसीपल है। और ये अगर असी भेद नूं अंदरों जाके समझांगे तो ये सारिਆਂ ਨੂੰ ही अपना लेना चाहिए। ये तो बिना गुजारा किसी का भी नहीं। देखो किसी भी मुल्क में कोई बीमारी आती है, कोई लड़ाई लगती है, तो कि उसका प्रभाव दूर तक नहीं जाता, सब जगह तक जाता है। तो सानू ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार असी इन्हां गल्लां दा रोस करते भी इदा क्यों किया जा रहा है, पर जिन्नी गल मैं अपने जीवन में समझ सकिया कि जिहड़ा हिफाजती पक्ष है ये साडे वास्ते है, साडे सब दे वास्ते है। पर बजट साडा अपना है, कोई गुरुद्वारा सरकार के पैसों नाल नहीं चलता। जिहड़ी तुसी गुरुद्वारे दी जिहड़ा संविधान बनाया है, जिहड़ी नियमावली बनाई है, जिहड़े रूल रेगूलेशन बनाए ने, वो तो तुसी बनाए ने ना। क्योंकि इहदियां जदों बुराइयां निकलदियां उदों ये गल समझ आ जाती है। वो जी नवीं कमेटी आ गई जी, उन्होंने जी अगे कमेटी 2 साल की हुंदी सी, उन्होंने जी हुण 4 साल की बना ली है जी। अगे इन्ने ट्रस्टी हुंदे सी जी, उन्होंने वधा लए ने जी। अगे इलैक्शन 2 साल बाद हुंदी सी, हुण 3 साल बाद करती। फिर समझ आउंदी भी इहदे च अमैंडमेंट भी हो सकती है। और तुसी गौरमेंट नूं कहने हो, कहते चलो इदां नहीं तो इदां कर लो, सानू की इतराज है। सरकार तो दखल नहीं दिंदी। इत्थे स्टेज थोड़ी अपनी है, माइक थोड़ा अपना है, स्पीकर थोड़ा अपना है, इत्थे बजट थोड़ा अपना है, इत्थे ऑडियंस थोड़ी है, इत्थे वोटर भी थोड़ा अपना है। तुसी फैसला करना है कि कौन व्यक्ति कमेटी की चोण कर सकता है। तो कमेटी जिहड़ी है उन्हें अगों स्टाफ की चोण करनी है, कौन ग्रंथी होएगा, कौन रागी सिंह होएगा। हुण इत्थे बैठ के अगर असी अपने धर्म की गल नहीं कर पा रहे ਜਾਂ सानू नहीं करनी आउंदी, तो फिर ये तो साडी अपनी नलैकी है ना। हुण आपां इत्थे भी कही जाने नहीं जी उन्हां दे धर्म का तो प्रचार बहुत है, भी उन्हां दे धर्म का प्रचार सरकार करदी है जाके। मैं पिछले दिन ही लुधियाने बोल के आया, हो सकता तुहाडे कोल उहदी वीडियो भी आई होवे, भी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पंजाब च क्यों होंदी है। जी वो जी एजेंसियां कर दियां ने, तो मैं क्या भी पंजाब च तो कोई एजेंसी नहीं, एजेंसियां तो सेंटर च होंदियां ने। तो जी एजेंसियां वालियां ने करना है तो उन्होंने बंदा पंजाब 450 किलोमीटर भेजण की की लोड़ है कि दिल्ली च गुरु ग्रंथ साहब है नहीं कि दिल्ली दे विच
गुरु ग्रंथ साहब नहीं है बेअदबी करने वास्ते, पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कोई क्यों करेगा? गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल किसी का की मतभेद हो सकता है? ये तो दीन दुनिया का पातशाह है। और मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि एक वक्त ऐसा भी सी, भावें सूरज ग्रहण लगदा सी, भावें कोई होर सनातन मत दे वड्डे वड्डे पुरब आउंदे सन, जदों इन्हां दे साधुआं दे अखाड़े जदों शाही इशनान करन वास्ते निकलदे सी ते सब तो अगे हाथी दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब हुंदा सी ते उत्थे ताबिया बैठ के एक महंत गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते चौर चलाउंदा सी। हुण इस तो वड्डी गुरु ग्रंथ साहब की वडियाई की हो सकती है? पर यह किद्दां हो गया भी हर पिंड च किते गुटके की बेअदबी हो रही है, किते पोथी की बेअदबी हो रही, किते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही है? उसका कारण है। मैं फिर उत्थे बोलिया, मैं क्या अगर झूठे साध ने एक बाणा पाया, किहड़े कपड़े पाए जिहड़ा हर विआह वाला मुंडा पाउंदा है? किहड़ा विआह वाला मुंडा जिहड़ा शेरवानी नहीं पाउंदा? किहड़ा विआह वाला मुंडा जिहड़ा घोड़ी नहीं चढ़दा? किहड़ा विआह वाला मुंडा जिहड़ा कलगी नहीं लाउंदा? किहड़ा विआह वाला मुंडा जिहड़ा अपने हत्थ 'च किरपान नहीं फड़दा? इहो जिहा बाणा उहने पाया तो परा मरे पाया तो की तां की हो गया? तुसीं रौला पाता जी गुरु गोबिंद सिंह बन गया। मैं तुहानूं दस के जाना चाहुंदा भी हुण उहदा तुसीं केस वापस ले लिया। वो बाणे वाला जिहड़ी एप्लीकेशन सी वो वापस लई जा चुकी है। तुहाडे कोलों उहनूं हथकड़ी नहीं लग सकी, तुहाडे कोलों वो जेल नहीं जा सकिया, तुहाडे किसी कोलों ਉਹਦੀ मौत नहीं हो सकी, क्योंकि 20 सालों तो एक नवा ट्रेंड शुरू होया है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ जी ਉਹਨੂੰ सोने ना ਤੋਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛੋ ਗੋਲੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सोने ना ਤੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ सोने ना नहीं ਸੀ ਤੋਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਸੋਧ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, और उन्होंने सोधन वाले सरदार उधम सिंह ना किसी ने सोने ना तोलिया, तो ना ही किसी ने उन्होंने कहा भी तोलांगे असी, ना ही उन्हें किसी तो परमिशन ली सी, ना किसी तो पासपोर्ट बनाया सी। जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारिया वो सतवंत सिंह बेअंत सिंह, एक बंदा दस दे गुरु की हजूरी च कि असी उन्होंने अमृत छकाया सी ना, उन्हें अमृत भी आप छकिया, काल तख्त भी आप गए, उत्थे रोए भी आप हो, आके उन्होंने घटना को अंजाम भी आपे दिता। हुण ये नवा काम शुरू होया है, लोगों के पुत मरवाउण लई सोने ना तोल देंगे। भी तुसीं इहो जिहियां गल्लां क्यों करदे हो? लोगों के धीआं पुत मरवाउण लई स्टेटमेंट देनी, ये किड्डी क अकल की गल है? आप करना कुछ नहीं। मैं फिर उत्थे बेनती की भी बेअदबी किवें हुंदी है। हुण उस झूठे साध नूं बड़े माड़े केसां दे विच फड़िया गया। फड़िया किन्ने? हरियाणा गौरमेंट ने। सज़ा किन्ने दिती? एक जगदीप सिंह नां दे बंदे ने, जिहड़ा सिख भी नहीं है। उहदे नां तो तुहानूं कईआं नूं भुलेखा पैंदा होना भी वो सिख शायद वाला कट्टिया वाला सरदार सिख फैमिली चो है। नहीं, वो CBI का जज सी, जेल उन्हें भेजिया। हुण हो की रहा है? पिंड दी साथ विच लोग बैठे ने, धुएं ते लोग बैठे ने। क्यों करता ना तुहाडे बाबे नूं इदां सी? हुण उहदे जिहड़े अनुयायी ने वो बिल्कुल लोअर क्लास लोग ने। क्यों असीं तुहाडे बाबे नूं धक्कता ना, तुहाडे बाबे नूं जेल च डकता ना। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ बैठा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ नहीं तू साडे बाबे ਨੂੰ कुछ कीता कि नहीं कीता, पर अज रात ਨੂੰ तेरे बाबे ਨੂੰ तो मैं कर देंगा।
मैं उत्थे बेनती करके आया भी अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮਾਰ, ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਬਈ? ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੇ ਸੰਤ ਹੀ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਕੁਝ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਰ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
तो ज्ञानी जी ने कहा भी मैं भी नहीं आता। उन्हें आख्या भी मैं भी प्रकाश नहीं करता, बाहर बूहा बंद हो गया। पर तुसी वेख्या गुरुद्वारे बंद नहीं होए, मंदिर बंद हो गए, मस्जिदां बंद हो गई, चर्च बंद हो गए। हुण ये लोगों ने अपनी अखां नाल वेख्या कि जिस रब दे घरों साडी बांह फड़ी जानी सी, साडी मदद होनी सी, साडी बॉडी कीती जानी सी, हालांकि रब का तो कोई कसूर नहीं, किसी मंदिर का कसूर नहीं, किसी मस्जिद का कसूर नहीं, किसी चर्च का कसूर नहीं। हुण दो श्रेणियां सी, जां प्रीचर सी जां प्रबंधक सी, वो दोवें भज गए। फिर उत्थे सिर्फ काम किया गुरुद्वारियां ने। हुण तुहानूं भी लगेगा कि बंगला साहब ते बड़ा लंगर लाया। लंगर उदों लग्या जदों उत्थे 1 रुपया भी गोलक च कोई मत्था नहीं सी टेकदा। असीं कल्ला लंगर नहीं लाया, असीं टीचरां नूं तनखावां भी दित्तियां, स्टाफ नूं मेरे ख्याल 2.5-3 करोड़ रुपया तनख्वाह महीने की वो भी दित्ती, तो लंगर भी लाया। उदों बाद फिर आटा बच गया, फिर दालां बच गईयां। तुसीं यकीन करना, इत्थों गोरियां ने पैसे भेजे सानूं ऑनलाइन। जदों उन्होंने वेख्या भी इंडिया च इन्नी चैरिटी हो रही है, मैं अनाउंस करता हुंदा सीगा, मुसलमानां ने पैसे दिते सन, क्रिश्चनां ने पैसे दिते सन। अज भी तुसीं वेखो, कोई भी व्यक्ति जदों मनुखता की सेवा करदा है ते मनुखता नूं प्यार करन वाले जां जिहड़े रब की पूजा करन वाले लोग ने, वो फिर तुहाडी जात नहीं पुछदे। भगत पूर्ण सिंह कौन सी, की सी उहदे कोले? उहदा पुत्र कौन सी? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह कौन सीगा? वो तो एक अपाहज बच्चा सीगा। एक गरीब बंदे ने एक डिसेबल बच्चे नूं गोद लै लिया। हुण दसो, प्यो दे पल्ले भी कुछ नहीं, पुत्र दे पल्ले उदा ही कुछ नहीं, वो झोली च पै गया। तो उन्होंने घर तो कुछ भी नहीं सी होना चाहिए, पर उत्थे एक एडी वड्डी संस्था पिंगलवाड़ा खड़ी हो गई। दुनिया दियां अमीर संस्थावां विचों एक है पिंगलवाड़ा। इत्थों लोग जाते सी कि असीं उत्थे कपड़े दे के आने ने, असीं उत्थे फ्रूट दे के आना है, असीं उत्थे पैसे दे के आने ने। पुछो भी तुसीं कर्जा देना पिंगलवाड़े का, तुसीं को जाके दे के आना है बई? नहीं। जिदन रब दे भाव विच बैठोगे, जिदन तुहानूं समझ आएगी कि मेरे हाथ सफले होने चाहिए ने, तो चेता रखना हाथ किरत नाल सफले होणगे। जिदन पैर सफले करने की कोशिश करोगे, ये सेवा नाल सफल होणगे। चरण सुहावे जां तो धिर जुड़दे, सीस सुहावा चरणी, मुख सुहावा जा तो जस गावै, जियो पया तो शरणी। बाणी नहीं पढ़ोगे तो मुंह पवित्र नहीं होएगा। मन करके परमात्मा की शरण विच नहीं जाओगे तो आत्मा का कल्याण नहीं होएगा। सिर लिया के गुरु के चरणों ते नहीं रखोगे तो पवित्र नहीं होएगा। हालांकि सारा दिन सिर सवारन ते आपां जोर लाउने अपना, और यह हकीकत है। मुकुट सिर ते रखा जाता है, पर पूजा पैरों की हुंदी जे चेता रखना। कदे किसी के सिर की पूजा किसी ने की, मत्था किसी ने किसी के सिर नूं नहीं टेकिया। मत्था जदों टेकिया जाता है पैरों नूं ही टेकिया जाता है, क्योंकि पैर ही सेवा करते हैं। जदों तुसीं ये चाहोगे कि मैं मेरी किरत सफली होवे, मेरा जीवन सफला होवे, उदों फिर तुहानूं समझ आएगी कि तुहानूं रब दे रस्ते ते तुरन दी लोड़ है। सच्चे पातशाह की बाणी सानूं ये समझाउंदी है, ये गल सानूं दसी गई है कि भाई जे तू चाहना है
कि मैं अपने जीवन को सफला करा, तो उसका तरीका ही है। मैं तो उधर हुण भी कमेटी वाले नूं कह रहा सी, क्योंकि हुण आम हालात ने। हुण तुसीं मैनूं भी सुनिया होना, कई बारी कहते हैं कि गुरु के लंगरां वास्ते रसद, देसी कड़ा प्रशाद वास्ते देसी घ्यो। आम वर्गे हालात ने, ਲੱਖਾਂ रुपया रोज़ गोलक च आउंदा है, पर हुण वो समान नहीं आउंदा जिहड़ा समान ट्रक्कां दे ट्रक आउंदा सी। मैं गल कह के समाप्ति करा, जो मैं पहली बार इंग्लैंड आया ना, तो उत्थे एक गुरुद्वारा बर्मिंघम विच, उहनूं डमेली वाला गुरुद्वारा कहते हैं। डमेली एक बड़ा इतिहासक पिंड है पंजाब दे विच। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज उत्थे गए सन। ते उत्थे मेरी 2 हफ्ते कथा सी। उत्थे एक सरदार आवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ रोज़ रॉयल कार सी। 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ CPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ CPA ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਦਾ ਗੋਤਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਸੂਰਤ ਸਰਦਾਰ। तो निको गल कहनी, ज्ञानी जी मैं उदों का सरदार हाँ जो बर्मिंघम में कोई सरदार नहीं सी हुंदा। बड़े औखे लोग बाहर आए ने, बड़े औखे तरीके नाल बाहर आके दुनिया सैट हुई है। साडा तो युग वधिया, इस ते जहाज ते चढ़ के आ गए हैं, सौखे आ गए हैं। इंग्लैंड में वो कथा भी सुनिया ने कि जदों कोई हीटिंग सिस्टम नहीं सी हुंदा, पानी गर्म करने लई उही इंडियन फार्मूला हुंदा सीगा, लकड़ा लियाओ तो पतीला रख के पानी गर्म करके सिर नहा लो, तो फिर वाल कटा देंदे सी भी कौन करे काम। जिवें ट्रेन के बर्थ होंदे, इदां ते लोग रहिंदे हुंदे सी उत्थे, पैनियां दे के। बड़ा औखा लोगों ने उत्थे जीवन जिहड़ा वो बसर किया। और उहदियां 2 गल्लां बड़ियां अजीब सी। हालांकि उदों जदों कथा की भेटा रखता सी, 10 पाउंड रखता हुंदा सी, भावें कीर्तन भेट रखे तो भी 10 पाउंड रखता सी। उन्हें कहना, ज्ञानी जी मैं गुरुद्वारे आउणा लंगर छकण वास्ते, ते कार लई है मैं तुहाडे वास्ते। और हकीकत कोई रागी सिंह प्रचारक सिंह उस गुरुद्वारे आवे तो उन्हें लैके आउणा रोज़ रॉयल ते जिहदी वदैगी होनी उन्हें छड्ड के आउणा जिहड़े गुरुद्वारे जाना उन्हें। इत्थे तुहाडे ना महीना महीना भी कोई जथा आवे तो महीना रवे। इंग्लैंड च पता नहीं किन्ने शुरू किया है, उत्थे 2 हफ्ते ही है। वो 2 हफ्तियां बाद ना रागियां नूं रखदे ने ते ना प्रचारक नूं रखदे ने। 2 वीकां लाओ तो अगे जाओ। उन्हें कहना जी मैं लंगर छकण गुरुद्वारे आउणा। मैं कहा यार एडा सियाणा बियाणा आदमी, अमीर आदमी है, गुरसिख आदमी, किहड़ी गल कहंदा है। पर हुण मैनूं जाके समझ आई भी जे कोई लंगर छकण वाला ही नहीं होएगा तो लंगर पकेगा क्यों। तो जे लंगर पकेगा नहीं तो पकाउण लई संगत आएगी क्यों। तो जे लंगर पकेगा ही नहीं तो उत्थे कोई दुध की कैनी तो कोई आटे की थैली कोई लियाएगा ही क्यों। देखो जो तुसीं लंगर लाए तो कितनी रसद आई, हुण तुसीं नहीं लंगर लाउंदे तो नहीं आउंदी। जिदन तुसीं लंगर लाउने उदन कितनी रसद थले है, कितना समान आ जाना है। अज आएगा ना, ऐतवार इस तो डबल ट्रिपल आएगा। सच्चे पातशाह ने जिहड़ी सानू बख्शिश कीती है, सानू उस सिद्धांत नूं समझण दी लोड़ है। जिहड़े पुरखियां ने भाई गुरदास दे वो बचन मन्ने, मैं फिर बेनती करा, उस वेले पता नहीं कि उन्हां बचनां दी कितनी कीमत होएगी, पर अज दी तरीक विच ये गल सच है कि जिन्ने बचन पुराने ने उन्ने ही बचन कीमती ने। ते जिन्हां ने गुरुआं दे गुरपुरब मनाए ने, हर दूजे तीजे चौथे दिन सिखां दा कोई विशेष दिहाड़ा हुंदा है। ते जे किते बबाणियां कहानियां असीं इत्थे बैठ के करिए तो किस गल का घाटा है जी, जिहड़ी गल साडे बच्चों नूं नहीं समझ आएगी। पर तुसीं गरीबी वेखी होनी है, पिछले दिन ही किसी ने वीडियो पाई भी चंगे चंगे सियाणियां नूं
वो टीवी वाले पुछते फिरते नहीं 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ तो अगों हस के कह जाते सानू तो पता ही नहीं जी क्योंकि आप इधर तुरे नहीं आप सिर्फ मत्था टेकन तक आए हैं ये भी मुबारक है मत्था टेकना भी एक अपने आप दे विच बहुत वड्डा पुण्य कर्म है सच्चे पातशाह किरपा करन असी इस तो अगे चलीए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु कलगीधर पिता महाराज तक 10 गुरु साहबाना का जिहड़ा पवित्र जीवन बरतांत है ये सानू जरूर सुनना चाहिए जिन्नी कि मैनू समझ आई है कि गुरबाणी थ्योरी है इहदा जिहड़ा प्रैक्टिकल है सिर्फ तो सिर्फ गुरु इतिहास है साडी गलती को असी गुरबाणी नूं पढ़ के वो सिद्धांत कदे ज्ञानी रंजीसों चो लभदे फिरदे हैं कदे भाई पिंदरपाल सिंह चो लभदे फिरदे हैं कदे असी किसी भाई राज सिंह वर्गे कीर्तनीए चो लभदे फिरदे हैं वो नहीं भाई गुरबाणी का जीवन गुरुआं ने सानू जीव के विखाया है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ है ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ जीवन ਤੇ लागू ਹੁੰਦਾ है ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ वो कहते होंगे सी भी जे कीर्तन का सत्यानाश कराना है तो मेरे तो करा लो तो जे कथा का सत्यानाश कराना है तो कहते भाई सुरजन सिंह तो करा लो हालांकि दोवें कौम के हीरे कथा दे विच प्रिंसीपल गंगा सिंह का कोई जवाब नहीं सी ते कीर्तन विच भाई सुरजन सिंह का कोई जवाब नहीं सी पर वो कीर्तन विच परफेक्ट है वो कथा विच परफेक्ट है ਹੁਣ कथा वाले कहो तू कीर्तन भी सुना दे वो कहता मैनू तो आता नहीं भाई तो कीर्तन वाले कहो भी तू कथा सुना दे साढ़े च होए ने 1-2 बंदे होए जिन्हों ने कीर्तन च भी उन्हों की पकड़ सी कथा च भी उन्हों की बड़ी मुहारत सी पर हुण तुसीं वेख्या होना है हर मेरे वर्गा कथा वाला भी वो धारणा लाउण लग जाता अगों गला खराब होता है हर कीर्तनीय कथा शुरू करके बह जाएगा तो वह फिर जो हाल होंदा है वो आपां वेख्या ही है इस करके साढ़े च कमियां ने साढ़े च औगण है साढ़े च भुल्लां ने पर जे असीं इहनूं समझना है तो जे किते गुरु इतिहास असीं पढ़ीए गुरु के लालां दा इतिहास गुरु के सिखां दा इतिहास किस तरह उन्होंने सिक्खी नूं जीविया है एवें थोड़ा दुनिया दे विच इन्ना मान सन्मान तुहाडा तुसीं यकीन करना फिर जिदन किते समा बने आप अगे विचार करांगे मुसलमान कहते ने वो कहते सिक्खी बारे जिन्ना सानू महाराजा रणजीत सिंह ने नेड़े किया कहते कोई नहीं कर सकता उन्होंने डर सी कि सिखां दा राजा बन गया लाहौर उहदी राजधानी है एक ना एक दिन अपने पुरखियां दा बदला जरूर लवेगा सारा लाहौर वढ़ के परे मारेगा भी साडे गुरु नूं इत्थे तत्ती तवी ते बिठाया साडियां मावां दे बच्चियां दे तुसीं टुकड़े टुकड़े किए टोटे टोटे किए उन्होंने तो खन्नी खन्नी रोटी दे गुजारा करवाया सवा सवा मन के पीसने इत्थे फसाए पर तुसीं हैरान होवोगे महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल च किसी को फांसी नहीं दी उन्हें कोई बदला नहीं लिया किसी मुसलमान तो उन्हें बदला नहीं लिया तो नतीजा ये निकलिया कि जिहड़े मुसलमान लोग सी उन्होंने दृढ़ हो गया भी सिक्खी इहनूं कहंदे ने प्रभ ते जन जानीजै जन ते स्वामी सच्चे पातशाह किरपा करन भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां उपदेश सतगुरु का है अपने पल्ले मन लैना शायद ऐतवार का फिर समा रखिया है मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मैं तो आउंदा ही 1-2 दिनों वास्ते हाँ पर तुहाडे प्यार तुहाडी असीस कि महाराज किरपा करदे ने मैनू भी तुहाडे चरण पर स्पर्श करन दा समा प्राप्त हुंदा है मैं सारी कमेटी का धन्नवादी हाँ सारे प्रबंधकों का सत्कारयोग भाई साहब जी का भुल्ला बख्शो जी फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी